بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ اب میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سلطانہ کو سمجھایا کہ اس اعلیٰ افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر فضائیہ کے افسر تک پہنچے۔ مجھے معلوم تھا کہ باقی تمام افسران یوگا کے ماہر نہیں ہیں۔ پھر میں نے ایک اعلیٰ حاکم کے ذریعے فلائنگ کلب کے انچارج سے کہا، ہماری ایک جاسوسہ اور جاسوس آ رہے ہیں، ان کے لیے طیارہ تیار رکھو، ایندھن چیک کر لو۔ میں نے لیلا کو فلائنگ کلب کے انچارج کے پاس پہنچا دیا۔ وہ دیکھتی رہی کہ ہمارے لیے جو طیارہ مخصوص کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ فلائنگ کلب شہر سے دور تھا۔ ہم آدھے گھنٹے میں پہنچے۔ طیارہ ہمارے لیے رن وے پر آ گیا تھا۔ سونیا نے پائلٹ سے کہا، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ اس نے پائلٹ کی سیٹ سنبھال لی۔ میں نے اس کے پیچھے ایک سیٹ پر بیٹھ کر سلمان سے کہا، اس افسر کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ۔ وہ میرے دماغ میں آیا۔ طیارہ رن وے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، سلمان تم سلطانہ کے پاس جاؤ، وہ اعلیٰ افسر کے دماغ میں ہے۔ اس افسر کے ذریعے تل ابیب کے ساحلی علاقے کے فوجی افسر کے پاس پہنچو اور اس کے دماغ میں رہ کر میرا انتظار کرو۔ سلمان نے پوچھا، ساحلی علاقے کے کس افسر کو اہمیت دینی چاہیے؟ میں نے جواب دیا، توپ خانے کے انچارج افسر کو اہمیت دو۔ اگر ہمیں خطرہ پیش آیا تو تم توپوں کا رخ شہر کی طرف کر کے اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کو دھمکیاں دو گے۔ سلمان چلا گیا۔ ہمارے طیارے کی پرواز کے ساتھ ہی ملٹری انٹیلیجنس کا ایک افسر پوچھ رہا تھا، یہ طیارہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ شہری حدود میں رہے گا؟ فلائنگ کلب کے انچارج نے لیلا کی مرضی کے مطابق جواب دیا، جی ہاں، شہری حدود میں ہی رہے گا۔ طیارے کے ذریعے شہر میں گشت کرنے والے فوجیوں سے رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملٹری انٹیلیجنس والوں نے ہنگامہ مچا دیا، کیونکہ ہمارا طیارہ سرحد پار جا رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے فضائیہ کے افسران سے کہا جا رہا تھا کہ اس طیارے کو روکو، وہ اجازت حاصل کیے بغیر سرحد پار جا رہا ہے۔ فضائیہ کے اعلیٰ افسر کے دماغ میں سلطانہ موجود تھی۔ اس نے کہا، طیارے میں ہمارا ایک افسر سیکرٹ مشن پر جا رہا ہے، اسے روکا نہ جائے۔ ہم نے سرحد پار کر لی، لبنان پہنچ گئے۔ وہاں فرانس کا ایک طیارہ ہمارا منتظر تھا۔ جب ہم اس میں سوار ہو گئے اور اڑان بھرنے لگے تو میں نے، سلمان، سلطانہ اور لیلا نے تمام اسرائیلی حکام اور فوجی افسران سے کہا، تمہاری نئی یوگا والی حکومت تمہیں مبارک رہے۔ پاپا ڈوک اپنی آخری سانس پوری کر چکا ہے۔ تمہارے ہی طیارے میں سونیا اور فرحاد یہاں سے جا چکے ہیں۔ تم پاپا ڈوک کی طرح جے مورگن کا برین آپریشن کر چکے ہو، اسے آئندہ کے لیے تیار رکھو، ہم پھر کبھی آئیں گے۔ ہماری ان باتوں پر کسی کو یقین نہیں آیا۔ کتنے ہی فوجی افسران دندناتے ہوئے پاپا ڈوک کی خفیہ رہائش گاہ میں پہنچے تو اس کی لاش دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر زبردست حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ باڈی گارڈز رکھے تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کے دماغوں میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایسے میں انہیں یقین نہیں تھا کہ ہم پاپا ڈوک تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طریقے سے اسرائیلی سرحدوں سے باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب سے اعلیٰ حاکم کی اجازت کے بغیر کوئی پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں بڑا ناز تھا کہ وہ حاکم سانس روک لیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہماری دال نہیں گلے گی۔ اب اس حاکم کا محاسبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم ایک طیارہ کیسے لے گئے۔ اس نے جواب دیا، میں حیران ہوں، وہ کیسے میرے دماغ میں پہنچ گئے؟ ایک فوجی افسر نے اس سے سوال کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تم رات کو نشے میں تھے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ میں نشہ نہیں کرتا۔ کبھی نیند نہ آئے تو خواب آور گولیاں استعمال کرتا ہوں، اور وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ فوج کے اعلیٰ افسران نے فضائیہ کے افسر سے پوچھا، فرحاد تمہارے دماغ میں کیسے پہنچا تھا؟ کیسے تم نے کہہ دیا کہ ہمارے افسر سیکرٹ مشن کے لیے سرحد پار جا رہے ہیں؟ فضائیہ کے افسر نے اعلیٰ افسر سے کہا، سر آپ نے مجھے یہی کہا تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ یوگا کا ماہر فوج کا اعلیٰ افسر بھی خواب آور دوا استعمال کرتا تھا، اور ہم ان سب کی ایسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر جا چکے ہیں۔ ان سب پر ماتمی کیفیت طاری تھی۔ انہوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے پاپا ڈوک کا برین تبدیل کیا تھا۔ اس کی ٹیلیپیتھی کے ذریعے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ لوگ امریکی حکام سے رابطہ کر کے اپنے ملک میں پیش آنے والا یہ المیہ سنا رہے تھے۔ اس سے پہلے گولڈن برینز اور ان کے اڈے کی تباہی نے ان تمام بڑے ممالک کو تشویش میں مبتلا کیا تھا۔ اگرچہ تمام گولڈن برینز کی موت سے امریکہ کو فائدہ پہنچا تھا، لیکن وہ اسرائیل کے غم میں اس لیے شریک تھا کہ کسی وقت بھی ہمارا رخ اس کی طرف ہو سکتا تھا۔
तमाम बड़े ममालिक ने हुकूमत फ्रांस से शिकायत की। नए सुपर मास्टर ने फ्रांस के एक हाकिम से कहा, अगर तुम्हारी हुकूमत फरहाद की फैमिली को पनाह ना दे तो उन्हें किसी मुल्क में सुकून से रहना नसीब नहीं होगा। फ्रांस के हाकिम ने उसे जवाब दिया, मफरूर लोगों को पनाह दी जाती है, जबकि फरहाद की फैमिली बरसों से फ्रांस की बाकायदा शहरी है, लेकिन उन्होंने इसराइल में मुजरिमाना हरकतें की हैं। मुजरिमाना हरकतों की इब्तदा इसराइल से हुई है। पापा डोग बाबा फरीद वास्ती मरहूम की साहबजादी को अगवा करके इसराइल ले गया। वहाँ के हुक्मरानों ने पापा डोग को सर पर बिठाया। अब उसकी मौत पर वावेला क्यों कर रहे हैं? बात सिर्फ पापा डोग की नहीं है। सोनिया और फरहाद ने तमाम गोल्डन ब्रेन्स को कत्ल किया है, तिल अबीब में बमबारी कराई है, हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। इसराइल ने भी तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वालों को अगवा किया है। अभी तक जे मॉर्गन उनकी कैद में है। अल्पा को मास्क मैन ले गया। तुम्हें उन दो ममालिक से कोई शिकायत नहीं है, जबकि फरहाद ने तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारी मरीना के हवाले कर दिया है। फिर भी तुम फरहाद की फैमिली की ही शिकायतें कर रहे हो। ये शिकायतें नहीं हैं, वार्निंग हैं। फरहाद को समझाओ, वो सिर्फ 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं और हमारे पास टेलीपैथी जानने वालों को पैदा करने वाली मशीन है। आखिर वो कब तक हमारे मुकाबले पर ठहरेगा? फरहाद के दोनों बेटों को देख रहे हो। बाप शेर है तो वो सवा शेर हैं। देखने और समझने के बाद भी समझ में नहीं आया तो खुदा ही तुम्हें समझाएगा। सुपर मास्टर ने फ्रांस के हाकिम से कहा, हमारा तुम्हारा शुमार बड़े ममालिक में होता है। तुम्हारे पास फरहाद समेत 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। मैं ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए तुम्हारे फ्रांस को 12 टेलीपैथी जानने वाले दूंगा। तुम उस कमबख्त की फैमिली को अपने मुल्क से निकाल दो। सुपर मास्टर, अभी तक बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। क्या पारस और अली तैमूर टेलीपैथी जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी तुम लोगों के 12 बजा रहे हैं। क्या तुमने सोचा है कि उन दोनों के पीछे कौन सा तूफान आने वाला है? तूफान? सुपर मास्टर ने ताज्जुब से पूछा। तूफान? मास्क मैन ने हैरानी से पूछा। तूफान? इसराइली हुकाम और दूसरे बड़े ममालिक ने सवाल किया। हाँ, तूफान। सोचो, तूफान। जब रसवंती से ऐसे 2 तूफान पैदा हो सकते हैं तो सोनिया किस क़ियामत की औलाद को जन्म देगी? ये सोनिया और फरहाद का मिलाप हो रहा है। ज़मीन और आसमान टकरा रहे हैं। जाओ, इतनी देर से समझा रहा हूँ, बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। अब शायद अकल आ जाए। राबिता ख़त्म हो गया। राबते ख़त्म कहाँ होते हैं? शुरुआत तो अब हुई थी। अमेरिका, रूस और इसराइल के हंगामी इजलास हो रहे थे। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि सोनिया ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो फितना कैसे क़ियामत बनेगा। सब ये कहकर अपनी तसल्ली कर रहे थे कि सोनिया कौन सा अफलातून पैदा करेगी। हमारी दुनिया में बड़े बड़े धमाके पैदा हुए, ये एक धमाका और होगा तो क्या हो जाएगा। खुद को तसल्ली देना और बात होती है, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जाता। सोनिया ने आज तक जैसे दिल दहला देने वाले कारनामे अंजाम दिए थे, उनके पेश नज़र ये सच्चाई मुस्तनिद थी कि आइंदा वो दिल दहला देने वाली औलाद पैदा करेगी। ये तो कुदरत के खेल होते हैं। कौन यकीन से कह सकता है कि आइंदा क्या होने वाला है? नए सुपर मास्टर ने अपने मुल्क के आला हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान से कहा, मैं खुशफहमी में मुब्तला होने वाला सुपर मास्टर नहीं हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ट्रांसफॉर्मर मशीन पर भरोसा ना करें। उस मशीन ने जितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए वो सब फरहाद की फैमिली से ज़ेर होते रहे। सबसे ज़्यादा सबक आमूज़ हकीकत यह है कि हम टेलीपैथी ना जानने वाले पारस और अली तैमूर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक आला हाकिम ने कहा, बेशक हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि दुश्मन की ताकत का हिसाब करना चाहिए। नए सुपर मास्टर ने कहा, हिसाब यह है कि पिछले दिनों एक नई सोनिया सानी पैदा हो गई थी। उसने न्यूयॉर्क आकर असल सोनिया के लिए रास्ता हमवार किया, हम सबको चक्कर में डाल दिया। अली तैमूर के साथ तिब्बत जाकर पापा डोग के गुरु को जहन्नम में पहुंचा दिया। यानी फरहाद की फैमिली में ऐसे नाकाबिले शिकस्त अफराद का इजाफा हो रहा है जो टेलीपैथी नहीं जानते और हमारे टेलीपैथी जानने वालों का शिकार कर लेते हैं। कर्नल ने कहा, मैं मानता हूँ फरहाद के फैमिली मेंबरान ने साबित कर दिया है कि ट्रांसफॉर्मर मशीन इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी इंसान की कुदरती सलाहियतें अपना लोहा मनवा लेती हैं। सुपर मास्टर ने पूछा, जनरल तुम क्यों चुप हो? तुमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट हमारे मुल्क के निज़ाम हुकूमत पर टेलीपैथी के जरिए हावी होना चाहते थे। तुमने उन सब को काल कोठड़ी में पहुंचा दिया। सिर्फ एक मरीना आज़ाद रह गई है जो फरहाद की फैमिली से मुतासिर नज़र आती है। हम तुमसे कुछ सुनने की तवक्को कर रहे हैं। जनरल ने कहा, दीवारों के भी कान होते हैं और टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तो किसी की भी नादानिस्तगी में आकर यहाँ की बातें सुन सकते हैं।
مملکت اسرائیل میں یوگا جاننے والے حکمران تھے، ان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہ فرہاد کس طرح ہمارے تک پہنچ جاتا ہے یہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے، اس لیے خاموشی ہے۔ جو میں کر رہا ہوں وہ آئندہ سامنے آنے والا ہے۔ نئے سپر ماسٹر نے کہا۔ پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ساتھ ہی یہ اجلاس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جنرل صاحب اپنی باتیں چھپا رہے ہیں تو مجھے بھی یہ چھپانے کا حق ہے کہ آئندہ میں کیا کرنے والا ہوں، ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا۔ پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سپر ماسٹر نے جواب دیا، اعلیٰ حکام کے لیے سینکڑوں ہزاروں سیاسی معاملات ہیں، اس لیے ٹیلی پیتھی کا معاملہ جنرل اور سپر ماسٹر پر چھوڑ دیں۔ میں وہ سپر ماسٹر نہیں ہوں جسے جنرل کے حکم سے آسانی سے گولی مار دی جائے گی، میں اپنی صلاحیتیں منوا کر رہوں گا۔ دوسرے اعلیٰ حکام نے کہا، ہم اس اجلاس سے جا رہے ہیں۔ جنرل اور سپر ماسٹر کا فرض ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے پہلے مرینا کو قابو میں کریں۔ اگر وہ فرہاد کے بیٹے سے متاثر ہوگی تو ہمیں زبردست نقصان پہنچے گا، لہٰذا میں عہدیداران سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سب جنرل اور سپر ماسٹر کو تنہا چھوڑ دیں اور یہ ہال خالی کر دیں۔ سب لوگ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ پھر وہ ہال تقریباً خالی ہو گیا، وہاں صرف جنرل اور سپر ماسٹر رہ گئے۔ جنرل نے کہا، میں مطمئن ہوں یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے اور ہمارے دماغوں میں کوئی آ نہیں سکتا۔ کیا تم خواب آور گولیاں استعمال کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں بچپن سے اصولوں کا پابند ہوں، وقت پر سوتا اور جاگتا ہوں۔ بچپن سے یہ عادت ہے کہ دماغ کو سوتے وقت مقررہ وقت پر جاگنے کی ہدایات دیتا ہوں اور نیند پوری کرتا ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اس طرح کوئی ہمارے دماغوں میں نہیں آئے گا، ہم اہم مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے۔ تم نے گھر میں آگ لگنے سے پہلے برین ماسٹر اور بلیک سیکرٹ کو کال کوٹڑی میں پہنچا دیا ہے، لیکن مرینا بھی ہمارا ایک چراغ ہے، اس سے بھی ہم بری طرح جل سکتے ہیں۔ جنرل نے کہا، اس لڑکی نے طرح طرح کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ فرہاد سے اس کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور اس سمجھوتے کے تحت فرہاد نے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مرینا کے حوالے کر دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو فرہاد نادان نہیں ہے، وہ مرینا کا دل جیت رہا ہے۔ بے شک یہی بات ہے، وہ مرینا کے ذریعے ہمارے بہت سے خفیہ معاملات تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے مرینا کو تمام ملکی معاملات سے الگ رکھا ہے۔ وہ ہماری پابندیوں سے آزاد رہ کر ملک و قوم کی کیسے خدمت کرے گی یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جلد از جلد یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ جس دن وہ نظروں میں آئے گی اسی دن اسے بھی برین ماسٹر اور بلیک سیکرٹ کی طرح کال کوٹڑی میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ ہمارے ہاتھ آئے گی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ جوان لڑکی اس مرد سے ضرور متاثر ہوتی ہے جو اس پر اپنی مردانگی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ فرہاد کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک پر مر مٹی ہے۔ فرہاد ایک طرف تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے حوالے کر کے اس کا اعتماد حاصل کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا کوئی بیٹا اسے محبت کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ زبردست شکنجے میں ہے۔ تم نے اس مسئلے کا حل ضرور سوچا ہوگا۔ ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو فرہاد نے کیا ہے۔ وہ مرینا کو سبز باغ دکھا کر جس طرح ٹریپ کر رہا ہے اور اپنے مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے، اسی طرح ہم اس کی فیملی سے ایک شخص کو ٹریپ کریں گے۔ اس کی فیملی میں سب نادان نہیں ہے، یہ تم نے درست کہا، سب نادان نہیں ہے، کوئی ایک تو نادان ہوگا یا ہوگی۔ ان کے ہاں خیال خوانی کرنے والے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہیں۔ رسونتی منظر عام پر نہیں آ رہی ہے، وہ بڑے راز میں رکھی گئی ہے۔ جو جوان ہونے کے باوجود پہلے ایک بچی کا ذہن رکھتی تھی، لیکن برین آپریشن کے بعد وہ بے حد ذہین اور خطرناک ہو گئی ہے۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے جسے ہم قابو میں لا کر فرہاد کو بلیک میل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس عورت کے ذریعے فرہاد کے تمام خفیہ اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کس عورت کی بات کر رہے ہو؟ اس کی دوسری بیوی لیلا۔ کیا لیلا کی تصویر اور ہسٹری ہمارے پاس ہے؟ نہیں، یہ تو فرہاد اور سونیا کے نکاح کے وقت انکشاف ہوا تھا کہ فرہاد کی فیملی میں لیلا اور سلطانہ نامی دو عورتیں بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہیں۔ تم لیلا کے متعلق کچھ نہیں جانتے، پھر اسے قابو میں کیسے لاؤ گے؟ اس کے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، میں جلد ہی ایک نیا کھیل شروع کروں گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، ابھی تو میں کھیل شروع کرنے والا ہوں۔ میں مرینا کو یقین دلاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، پچھلے سپر ماسٹر کی طرح اس کا مخالف نہیں ہوں۔ اس کی حمایت کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، تمہارے تعاون سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ برین ماسٹر اور چاروں بلیک سیکرٹ سزائے موت کے مستحق ہیں۔ ایک تو وہ ہمارے ملک میں فرعون بن رہے تھے،
दूसरा ये कि हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। हमारी कितनी ही खुफिया दस्तावेज़ात कहाँ छुपा कर रखी जाती हैं ये उन्हें मालूम है, और काल कोठड़ी में बैठकर पता नहीं वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए हमारे कितने दुश्मन मुल्कों से राबता कर रहे होंगे। हाँ, उनका ज़िंदा रहना मुनासिब नहीं है। अगरचे वो कस्में खाते हैं और वादा करते हैं कि कैदी रहकर मुल्क की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन गद्दारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यही ताउन चाहता हूँ, उन्हें मेरे ज़रिए मरने दो। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स के दिमागों को वक्ती तौर पर कमज़ोर बनाओ, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए आसाब की कमज़ोरी में मुब्तला करो, फिर उन पर तनवीमी अमल कराओ। तुम्हारा एक ख़ास टेलीपैथी जानने वाला ये अमल करेगा, उनके दिमागों में जाया करेगा। तुम उन्हें काल कोठड़ी से निकालकर आज़ाद छोड़ दोगे। वो हमें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकेंगे। उनके दिमाग तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले की मुट्ठी में रहेंगे। बहुत उम्दा प्लानिंग है। उनकी आज़ादी के बाद क्या करोगे? जैसे हालात पेश आएंगे वैसी ही चालें चलूँगा, लेकिन वो पांचों एक एक करके ज़रूर मारे जाएंगे। जनरल और सुपरमास्टर के दरमियान ये मामला तय हो गया। सुपरमास्टर ने अपनी रिहाइश गाह में आकर मरीना के नुमाइंदे से फ़ोन पर राबता किया, फिर कहा, मरीना जब भी तुम्हारे दिमाग में आए तो उससे कहना मुझसे फ़ोन पर राबता कर ले। उसने रिसीवर रख दिया। उसी शाम मरीना ने फ़ोन पर उसे मुखातिब किया। हेलो सुपरमास्टर, मैं मरीना बोल रही हूँ, तुम्हें यह ओहदा मुबारक हो। शुक्रिया मरीना, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ा है, तुमने वाकई बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। क्या तुमने मुझे मेरी तारीफ़ें करने के लिए बुलाया है? मेरा ख्याल है तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश नहीं होती हो। यह भी एक तरह से मेरी तारीफ़ है। काम की बात करो। मैं तुम्हारे ताउन से उन गलत अफराद को बेनकाब करना चाहता हूँ जो हमारी हुकूमत में आला ओहदों पर रहकर मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। क्या तुम ऐसे अफराद को जानते हो? हाँ, मगर ये बातें मैं फ़ोन पर नहीं करूँगा। मेरे एक वफ़ादार मुलाजिम के दिमाग में आकर मुझसे बातें करो। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। जब वो आया तो उसे रिसीवर देकर बोला, फ़ोन पर बातें करो। मुलाजिम ने रिसीवर लेकर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? मरीना रिसीवर रखकर मुलाजिम के दिमाग में आ गई। वो फिर रिसीवर रखकर बोला, सर, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। मरीना ने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं बोल रही हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, सुना है तुम बहुत मोहतात रहती हो, लेकिन अभी एक्सचेंज के ज़रिए मालूम हो जाएगा कि तुम इसी मुल्क के इसी शहर में हो। हाँ, जब मालूमात हासिल करके तुम्हारे जासूस इस नंबर वाले के फ़ोन तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि मैं यहाँ एक औरत के दिमाग पर कब्ज़ा जमा कर तुमसे बातें कर रही थी। शाबाश, वाकई तुम मोहतात रहती हो। मैं भी तुम्हारी तरह किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम पर एक हद तक भरोसा कर रहा हूँ। वादा करो, मैं जो कहूँगा उसे तुम राज में रखोगी। मैं वादा करती हूँ, अपने मुल्क और कौम की भलाई चाहने वाले के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। तो फिर सुनो, जनरल तुमसे फ्रॉड कर रहा है। उसने दिखावे के लिए ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को कैद किया है। ये पांचों हमारे मुल्क के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। इन गद्दारों को फ़ौरन गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो किसी मकसद के लिए उन्हें काल कोठड़ी में ज़िंदगी दे रहा है। मरीना कायल होकर बोली, तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। वो पांचों गद्दार हमारे मुल्क के तमाम राज दूसरे ममालिक तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें फ़ौरन गोली मार देनी चाहिए। सुपरमास्टर ने कहा, जनरल आला हुकाम से कह रहा था कि उन पांचों के दिमागों को तनवीमी अमल के ज़रिए एक टेलीपैथी जानने वाले की मुट्ठी में रखा जाए। वो जनरल का ही एक ख़ास टेलीपैथी जानने वाला है। वो शख्स उन्हें अपने काबू में रखा करेगा। उन्हें काल कोठड़ी से इस शर्त पर निकाला जाएगा कि वो पांचों तुम्हें तलाश करके कत्ल कर दें और तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करें। जब वो ये कारनामा अंजाम देंगे तो उन्हें दोबारा ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट बना दिया जाएगा, लेकिन जनरल अपने ख़ास ख्याल ख्वानी करने वाले के ज़रिए उन पांचों को हमेशा अपने काबू में रखा करेगा। वो बोली, तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। मुझे खुशी है सुपरमास्टर कि तुम सही मानों में मुहिब्बे वतन हो और मेरा साथ दे रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अपने एक टेलीपैथी जानने वाले से कहो वो मेरे मुलाजिम के दिमाग में आता जाता रहे। जैसे ही वो पांचों गद्दार रिहा किए जाएंगे, मैं तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वाले के ज़रिए तुम्हें ख़तरे से आगाह कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुपरमास्टर। मेरा एक आदमी तुम्हारे मुलाजिम के दिमाग में आता जाता रहेगा। वो सुपरमास्टर की दोस्ती से किसी हद तक मुतमईन होकर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अपनी चेयर से उठकर दरवाजे पर आई और बालकनी में आकर देखा। पारस घोड़े पर सवार था और उसे दौड़ाता जा रहा था। जब वो किसी मामले में मसरूफ़ नहीं रहा करता था तो इसी तरह घुड़सवारी करता था।
कई मील की दौड़ लगाता था और उस्ताद मास्टर वाटसरोकी की हिदायत के मुताबिक हमेशा चाको चौबंद रहता था। वो जब तक घोड़े पर सवार जाता नजर आता रहा, मरीना मोहब्बत से उसे देखती रही। फिर वो नज़रों से ओझल हो गया तो वो मुस्कुराती हुई कमरे में वापस आई। फिर पलंग पर आकर उसके मुलायम गद्दे पर चारों शाने चित गिर गई। उसके हवास पर वो छाया हुआ था। वो जालिम नहीं था मगर उसे जकड़े हुए था। वो नाग नहीं था पर जहरीला था। वो नागिन नहीं थी पर जहर चूस लेती थी और दिन रात अजब बेखुदी के आलम में रहती थी। अब तो कभी कभी डरने लगी थी कि वो कभी जुदा होगा तो उसके बगैर वो कैसे जिएगी। पहले वो गैर महसूस तौर पर उसकी तरफ खिंची जाती थी और अब उसकी आदी हो रही थी। वो हर सांस के साथ उसके अंदर आता था और हर सांस के साथ बाहर जाता था। फिर वो आहिस्तगी से सांस लेती थी कि दम बाहर ना रहे, वो दम बदम उसके अंदर ही रहे। जिंदगी के अमली मैदान में जागता हुआ जहन रखने वाली उसकी सोच में आंखें बंद कर लेती थी। इस वक्त भी आंखें बंद किए उसी को सोचती रही। फिर उसने चौंक कर आंखें खोल दीं, घड़ी की तरफ देखा। उसके ख्यालों में गुम होकर पता ही नहीं चलता था कि कितना वक्त गुजर गया। वो उठकर बैठ गई। केनी पॉल, मिकी मैथ्यू और वार्नर हेग और जितने टेलीपैथी जानने वाले अगवा किए गए थे वो सब उसे मिल गए थे। वो उनके दिमागों में जाने लगी थी। केनी पॉल और मिकी मैथ्यू को अपने मुल्क में बुला लिया था। वार्नर हेग जजीरा पोटोया में था। मरीना ने उसके दिमाग में आकर उसे मुखातिब नहीं किया क्योंकि वो इस हकीकत से बेखबर था कि किसी के तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है और मरीना जो की सोच के लहजे में उसके अंदर आने लगी है। उसके दिमाग में आते ही पता चला कि वो एक मुसलमान लड़की हमायला के इश्क में गिरफ्तार है और ये इश्क वार्नर और हमायला के लिए इतना संजीदा और इतना गहरा था कि एक ज़बरदस्त मसला बन गया था। हमायला अपना मज़हब छोड़ नहीं सकती थी और वार्नर को भी अपने मज़हब से लगाव था। इन्हीं मजबूरियों के पेश नज़र वो शादी नहीं कर सकते थे, बस दूर ही दूर से मोहब्बत करते थे। मरीना ने बड़ी हैरानी से सोचा, दोनों भरपूर जवान हैं, फिर एक दूसरे के सामने आकर दूर कैसे रहते हैं। मैं तो पारस से दूर ना रह सकी, हमायला कैसे जज्बों की रोकथाम कर लेती है। उसने वार्नर की सोच में कहा, मुझे कम से कम हमायला का हाथ पकड़ना चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं करता। वार्नर की मुस्बत सोच ने कहा, वो बहुत हया वाली है, एक दोशीज़ा की हया से मोहब्बत का हुस्न कायम रहता है। जो बीवी बनकर बच्चों की माँ बनकर भी अपने मर्द की तन्हाई में शर्माए, ऐसी लड़कियां नसीब वालों को मिलती हैं, वरना सारी दुनिया में गुनाहों का बाजार इतना गर्म है कि हया नाबूद होती दिखाई देती है। वार्नर के ख्यालात पढ़कर मरीना को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। क्या मुझ में हया नहीं है? क्या मैं पारस के साथ बेहया हो चुकी हूँ? और वो मुसलमान लड़की ऐसी शर्म वाली है कि वार्नर को हाथ पकड़ने भी नहीं देती। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पारस की मोहब्बत में बेकीमत हो गई है। उसे हमायला की तरह अपनी कीमत को बढ़ाते रहना चाहिए था। वो झुंझुलाकर वार्नर के दिमाग में आई, फिर उसकी सोच में बोली, मर्द वही है जो औरत की हया को जीत ले। मैं क्यों खामखा हमायला की शर्मीली तबीयत को अहमियत दे रहा हूँ। अगर वो एक बार मेरी तन्हाई में आ जाए तो फिर मेरी दीवानी बनकर अपने मज़हब से फिर जाएगी, ईसाईयत कबूल कर लेगी, यूँ हमारी शादी हो जाएगी। वो परेशान होकर बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं अपनी हमायला को उसकी पाकीज़गी से अलग नहीं करना चाहता तो उसे उसके मज़हब से क्यों अलग करने की बात को सोच रहा हूँ। नहीं, मोहब्बत ऐसी खुदगर्ज नहीं होती। क्या मेरे दिमाग में शैतान घुस आया है? वो उसके दिमाग से निकल आई, इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। ये बात इस तरह बढ़ा रही थी कि जब वो एक मुसलमान के साथ ज़िंदगी गुजार रही है तो हमायला एक ईसाई के करीब आने से क्यों कतराती है। एक की पारसाई दूसरी के लिए गाली बन गई थी। घोड़े के टापों की आवाज़ें आ रही थीं। पारस वापस आ गया था। बाहर घोड़ा हिनहना रहा था। वो बेचैनी से टहलने लगी। कहाँ तो वो पारस की आहट या आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज उसके आते ही मुंह फेर के खड़ी हो गई। वो कमरे में आया, फिर इजी चेयर पर बैठकर पैरों से राइडिंग शूज़ उतारते हुए बोला, क्या बात है, मुंह फेर के कुछ कहना चाहती हो? वो पलट कर बोली, मैं आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ। याद है तुम्हारी सुल्ताना आंटी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बीवी बनाने से पहले मुसलमान बनाना चाहते हो। क्या यह झूठ है? बात पुरानी हो चुकी है, ये तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। तुम्हारी बात का जवाब पहले दे चुका हूँ। पहले हमारी शादी तुम्हारे मज़हब के मुताबिक होगी, फिर मेरे मज़हब के मुताबिक निकाह पढ़ाया जाएगा
और निकाह से पहले तुम कलमा तौहीद पढ़ोगी। मैं नहीं पढ़ूंगी। ये तो मैं देख रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ना चाहती हो, इसलिए अभी तक हमारा निकाह नहीं हुआ है। तो फिर किस रिश्ते से मेरे साथ रहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ? कैसी उल्टी बातें कर रही हो? मुझे मेरे अंकल किंग फर्नांडो ने यह बंगला रहने को दिया है, तुम मेरे साथ रहती हो। फरहाद अली तैमूर की फैमिली में ऐसा कोई बेगैरत नहीं है जो अपनी होने वाली बीवी के घर में जाकर रहे। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं हूँ। तुम कह रही हो तो ये सच होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आखिर क्या बात है? तुम्हारे तेवर क्यों बदल गए हैं? तुम मुसलमान लोग खुद गर्ज होते हो। गुस्सा थूक दो फिर बोलो। मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम लोग गैर मज़हब से लड़कियाँ ले आते हो और अपने मज़हब की लड़कियों को दूसरे मज़हब में जाने नहीं देते। सुनो मरीना, दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो कट्टर मजहबी होते हैं जिनसे दुनिया की कोई ताकत उनका ईमान नहीं छीन सकती। दूसरे वो होते हैं जो मज़हब और कवानीन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमारी दुनिया में कितने ही लोग आए दिन अपना मज़हब बदलते रहते हैं। उनमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सभी होते हैं। हमने कभी किसी का गिरेबान पकड़कर उसे मलामत नहीं की। कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, और ये तो सीधी सी बात है। जो अपना वतन बदलता है, अपनी ज़ुबान बदलता है, उसे खुदा बदलने में देर नहीं लगती। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वार्नर अपना वतन छोड़कर एक जजीरे में चला गया है तो क्या वो मुसलमान लड़की की खातिर अपनी ज़ुबान और अपना मज़हब भी बदल देगा? भाई, तुम किस वार्नर की बातें कर रही हो? वही जो जजीरा पुटोया में है। एक मुसलमान लड़की हमायला उससे मोहब्बत करती है मगर अपना हाथ पकड़ने नहीं देती। क्या मैं उसका हाथ पकड़ा दूं? ज़रूर ऐसा करना चाहिए। मैं ईसाई होकर तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। हमायला को भी अपने ईसाई महबूब के साथ यही कुछ करना चाहिए। प्लीज़ एक मिनट, क्या मैंने तुम्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा? कभी नहीं कहा। तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी तन्हाई में आती हो या मैं जबरन तुम्हें खींच कर लाता हूँ? मैं अपनी मर्ज़ी से आती हूँ। तो फिर हमायला को भी उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दो। बात समझ में आने वाली थी मगर वो गुस्से में टहलने लगी। फिर पारस के पास बैठकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम में ये बुनियादी शराइत हैं कि एक खुदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर दिल से कलमा पढ़ा जाए। चलो, मैं दिल से कलमा पढ़ लूँगी। तुम पापा से कहो मेरे बदले में हमायला को ईसाईयत कबूल करने की हिदायत करें। सॉरी मरीना, मैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए एक मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम नहीं बनने दूंगा। तो फिर साबित हो गया कि मुसलमान खुद गर्ज होते हैं। अक्ल से समझो, हम बाहर से कोई चीज़ लाकर घर का हुस्न बढ़ाते हैं, लेकिन घर का हुस्न बाहर फेंक कर अपने घर को नहीं उजाड़ते। ऐसा कोई नहीं करता। मैं समझ रहा हूँ कि हमायला की पारसाई के बायस तुम्हारी अना को ठेस पहुँच रही है। तुम इस बात को यूँ समझो कि ये मामला सिर्फ एक मुसलमान लड़की का नहीं है। यहूदी और ईसाई लड़कियाँ भी पारसा होती हैं। या फिर यूँ समझो कि हमायला की नज़रों में मज़हब अव्वल और मोहब्बत सानवी है। तुम्हारी नज़रों में मोहब्बत इतनी ज़्यादा अहम है कि तुम हर दीवार गिराकर मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा को हमायला नहीं छू सकेगी। पारस के आखिरी फिक्रे ने उसे किसी हद तक मुतमईन किया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अंगारे दहक रहे थे। वो दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए बोली, तुम्हारे साथ बहस करते हुए भूल ही गई कि ज़रूरी ख्याल ख्वानी करनी है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पारस को नज़र भर के देखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। एक सोफे पर आकर बैठते हुए दिल ही दिल में बोली, हमायला कैसे दूर रहेगी? उसे अपने महबूब की तन्हाइयों को आबाद करना चाहिए। मैं उसे मजबूर करूंगी। उसने वार्नर के दिमाग में पहुंचकर उसके अंदर हमायला के लिए बेचैनी पैदा की ताकि वो हमायला से मुलाकात करे, उससे बातें करे। इस तरह वो हमायला की आवाज़ और लहजा सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाए, फिर उसके अंदर रहकर औरत के जज्बात को बेलगाम करे। इसके बाद हमायला किसी हिचकिचाहट और हया के बगैर उसकी आगोश में चली जाएगी। दूसरी तरफ पारस ने टॉयलेट में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर जेब से एक नन्हा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट किया। राबता कायम होने पर उसने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अम्मी मैं हूँ आपका बेटा पारस। पारस पहले लैला को आंटी कहता था। जब लैला ने फराख दिली से सोनिया को सही मानों में और अच्छे अंदाज में सौकन तस्लीम कर लिया तो उसने लैला से कहा, आज से मैं आपको आंटी नहीं बल्कि पाकिस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक अम्मी कहा करूँगा। बहरहाल उसने लैला को हमायला के मुतल्लिक थोड़ी सी तफसीलात दी, फिर कहा, मरीना अपनी इंसल्ट महसूस कर रही है। आइंदा वो हमायला के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे वार्नर की तन्हाई में पहुंचा देगी। आपसे गुजारिश है कि हमायला को उसकी हया की हदूद से बाहर ना जाने दें। लैला ने कहा, इत्मीनान रखो बेटे, यहाँ मसला मज़हब का नहीं है।
मरीना जबरन हमाला को मज़हब तब्दील करने पर माइल करेगी, मैं उसे नाकाम बना दूंगी। पारस ने कहा, अम्मी मरीना बहुत अच्छी है, बस इतनी सी बात है कि हमाला की हया से मरीना की हया को या अना को ठेस पहुंची है। मैं समझती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। ये कहकर लैला ने जोजो के लहजे को इख्तियार किया, फिर ख्याल ख्वानी के ज़रिए वार्नर हेग के दिमाग में पहुंच गई। वहाँ मरीना पहले से मौजूद थी। वार्नर के अंदर हमाला के लिए जज्बात भड़का रही थी, उसे तरगीब दे रही थी कि वो हमाला से मुलाकात करे और उससे बातें करे, ताकि वो हमाला की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंच जाए, फिर उस हया वाली को वार्नर की आगोश में जाने पर मजबूर कर दे। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।